Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the general equilibrium in goods and money market. So here first we will define and explain the concept of general equilibrium in goods market. And then after defining the term IS curve, under certain assumption we will derive the IS curve mathematically and numerically. Then we will construct the IS curve with the help of diagram. After the construction of IS curve, we would follow the same pattern in order to derive the LM curve. After the derivation of both IS and LM curve, we will combine the both IS and LM curve in order to find the simultaneous equilibrium in goods and in money market. Then in the last of this lecture, we will talk about certain disturbances and movement towards the equilibrium point, and we will also explain that how the adjustment takes place under the ISLM framework. So let's start our lecture. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ पर डिटर्मिन होता है जहाँ पर सेविंग्स इक्वल हो जाएं इन्वेस्टमेंट के, या इसी को हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटर्मिन्ड एट ए पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. इसी तरह से अब देखें, इसी को अगर हम फॉलो करें तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करती है. अब हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव को चेक करते हैं कि व्हाट आर देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू डिटरमिन द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड देयर डिपेंडेंसी ऑन द अदर वेरिएबल्स. As according to classical, both saving and investment are dependent on the rate of interest. जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है तो यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमी में जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी तो इट वुड रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिकल फ्रेमवर्क. But according to Keynes, saving is dependent on the level of income, but investment is only comprised into the autonomous investment. तो यहाँ पर जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होती है. Then in 1937, Hicks wrote his article, namely Classicals and Mr. J.M. Keynes, where he presented the concept of IS curve. According to Hicks, corresponding to equilibrium level of national income, where investment becomes equal to saving. Here there is some particular rate of interest. तो हम कह सकते हैं कि हिक्स जो है आईएस के थ्रू लेवल ऑफ नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है उस पॉइंट पर जहां सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती हैं. अकॉर्डिंगली इट इज़ आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व. नाउ वी विल डिफाइन द आईएस कर्व. In order to define the term IS curve, we can say that IS curve is a curve which shows different combination of rate of interest and level of national income that brings the equilibrium in goods market. तो यहाँ पर गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होता है जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती हैं. तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती हैं तो यहाँ पे हिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिर्फ लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिन नहीं होता, बल्कि जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है यहाँ पे कम्बिनेशन डिटर्मिन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ नेशनल इनकम का. जैसा कि हिक्स ने जो है वो लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया. सो इट इज़ नोन एज IS कर्व. Now in order to derive the IS curve, first we will explain the certain assumption of the model and then we will move forward further and derive the IS curve mathematically, numerically and graphically. To derive the IS curve, we assume the followings. Two sector economy.
When we are assuming that there are two sector economy, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर जस्ट टू सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, then the aggregate demand equation would become as y is equals to c plus I. अगर इसको हम थ्री सेक्टर के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी ऐड हो जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऐड करने के बाद थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन ऐसे बन जाएगी y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस g. It is also assumed here that consumption is the function of income. और इसको इक्वेशनली फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं c इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वाई, जहाँ पे हम जानते हैं कि सी नॉट जो है वो ऑटोनमस कंजम्पशन को और सी वाई इंड्यूस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है. फर्दर सेविंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम. It could be written in the form of equation as saving is equals to minus S naught plus SY. The important assumption made by the Hicks is that investment here is the function of rate of interest. यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज इन्वेस्टमेंट में चेंज लेकर आता है. जैसा कि क्लासिकल फ्रेमवर्क में हमने अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, उसी को फॉलो करते हुए हिक्स ने इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन शो किया है. एंड इट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस वी आर. It is also assumed here that price level does not change. Further, it is assumed here that money wages remains the same and the economy has the unused resources. यानी इकोनॉमी में जो है वो एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो एक्सेस डिमांड को या बढ़ी हुई डिमांड को इकोनॉमी जो है वो पूरा करने के लिए सलाहियत रखती है, क्योंकि इकोनॉमी में अनयूज्ड रिसोर्सेज मौजूद हैं. Now we will derive the IS curve mathematically. जैसा कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन ऐसे है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी गिवन है. देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन इनटू द इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड वी कैन फॉर्म द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज एज y is equals to c naught plus cy plus i naught minus vr, जहाँ पर v जो है वो स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये शो करता है कि हाउ मच चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन इन्वेस्टमेंट. यानी ये जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पॉन्स को शो करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना रिस्पॉन्स करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने की वजह से. तो इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स को जो है वो वी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वाई वाली जो टर्म राइट साइड पे अपेयर हो रही है इसको लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आर. अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन में से y को कॉमन लेना है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इंटू वन माइनस सी इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आर. अब हमने इसको y के लिए सॉल्व करने के लिए 1 माइनस सी को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस वी आर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस सी. और इसको हम अगर सेपरेट करके लिखें, राइट हैंड साइड और जो फ्रैक्शन आ रही है इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है y इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट माइनस 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू वी आर. अब अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर लें कि ये जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन पर राइट हैंड साइड पर ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है और राइट हैंड साइड पर जो सेकंड इक्वेशन के अंदर सेकंड टर्म है वो बी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो अगर हम यहाँ पर इनके जो है वो एब्रीविएशंस को पुट कर दें तो इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी y इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आर.
तो जहाँ पर बी जो है वो स्लोप ऑफ आई एस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वेशन जो है वो आई एस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर ए जो है वो इंटरसेप्ट ऑफ द आई एस कर्व को और इसके शिफ्टिंग फैक्टर्स को शो कर रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए जो है वो ऑटोनमस कंजम्पशन, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रहा है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी होंगे तो यहाँ पे एक नई टर्म ऐड हो जाएगी जी नॉट के नाम से, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को शो कर रही होगी, ऑटोनमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग को शो कर रही होगी। तो इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो शिफ्टिंग फैक्टर्स ये कहलाते हैं। इनमें चेंज जो है वो आई एस कर्व को शिफ्ट कर देता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसी तरह से टैक्सेस भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, टैक्सेस में भी चेंज जो है वो आई एस कर्व को शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट बी जो है वो स्लोप ऑफ आई एस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी स्टीपर, फ्लैटर, वर्टिकल, हॉरिजेंटल जो है वो शेप जो है वो इस बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे बी देखें हम डिपेंड करता है इंटरेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो वी को शो कर रहा है स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकली आईएस की इक्वेशन डेराइव करने के बाद अब हम इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और न्यूमेरिकल जो है वो डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकली आईएस कर्व की। तो न्यूमेरिकली जो है वो आईएस कर्व की डेरिवेशन करने के लिए हमने जो है वो कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें गिवन है। कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 100 + 0.5 y और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यू गिवन है 100 - 10 r। अब हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन को एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 100 + 0.5 y + 100 - 10 r। अब हमने क्या करना है, इस y वाली इक्वेशन को जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाना है ताकि हम y जो है यहाँ से कॉमन ले सकें और नेशनल इनकम के लिए सॉल्व कर सकें इस इक्वेशन को। तो y - 0.5 y इज़ इक्वल्स टू 100 + 100 - 10 r, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में से y को कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी y × 1 - 0.5 इज़ इक्वल्स टू 200 - 10 r। अब हमने क्या करना है, नेशनल इनकम के लिए सॉल्व करने के लिए इस 1 - 0.5 को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 200 - 10 r ओवर 1 - 0.5। इसको आप सॉल्व करके 0.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 ओवर 1 - 0.5 इंटू 200 माइनस 1 ओवर 1 - 0.5 इंटू 10 r। अब अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें तो फर्स्ट जो है वो इस टर्म की जगह पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 माइनस सेकंड जो टर्म है इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 r। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली हमने आईएस इक्वेशन को डेराइव किया। अब इस इक्वेशन में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएं तो हमारे पास लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% पुट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो इस 5% को हम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो ये हमारे पास आईएस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास y जो इक्वेशन है वो आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 400 माइनस 20 इंटू 5%। तो हमारे पास इनकम जो है वो डिटर्मिन होके आ जाएगी 399। इस 399 को अगर हम कंजम्पशन फंक्शन में पुट कर दें y की जगह पर तो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 299.5। सेविंग के लिए अगर सॉल्व करें तो सेविंग को हमें जो है फार्मूला पता है कि सेविंग इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड। सो इन ऑर्डर टू डिराइव द इक्वेशन फॉर सेविंग वी शुड सब्ट्रैक्ट द कंजम्पशन फ्रॉम द इनकम। सो हमने क्या करना है, इनकम हमारे पास है 399, इसमें से हमने 299.5 कंजम्पशन को माइनस कर देना है तो हमारे पास जो है सेविंग्स आ जाएंगी 99.5।
इसी तरह से इस 399 को अगर हम इसी तरह से हम इस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट फंक्शन में जाके पुट करें तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 99.5, जो कि सेविंग के बराबर है। इसको हम टेबल की फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो यहाँ पर इनकम हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी 399 और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 99.5। This discussion confirmed that IS curve shows the pair of both rate of interest and level of national income where saving becomes equal to investment. Now we will construct the IS curve diagrammatically. यहाँ पर IS कर्व को ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली डेराइव करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट पैनल्स हैं इस डायग्राम के। यहाँ पर जो फर्स्ट पैनल है वो शो कर रहा है सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। पॉजिटिवली स्लोप कर्व है जो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पैनल है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेगेटिवली स्लोप कर्व है जो शो कर रहा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। थर्ड पैनल या थर्ड पार्ट जो है डायग्राम का वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये जो येलो कलर में लाइन है ये सेविंग और इक्वालिटी को इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को शो कर रही है। इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को शो करेगा। जबकि पार्ट 4 में हमने जो है IS कर्व को डेराइव किया है। इस IS कर्व पर U पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट OR2 और OY1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम के कम्बिनेशन को शो कर रहा है, जबकि यहीं पर इस IS कर्व पर V पॉइंट OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड OY2 लेवल ऑफ नेशनल इनकम के कम्बिनेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम सेकंड पैनल में देखें तो OR2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट OI1 के बराबर है, जबकि लेवल ऑफ नेशनल इनकम OY1 पर सेविंग्स OS1 के बराबर है। जैसा कि फर्स्ट पैनल में पॉइंट G शो कर रहा है, जबकि थर्ड पैनल ऑफ द डायग्राम में K पॉइंट शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, यानी OS1 बराबर है OI1 के। जबकि IS कर्व पर V पॉइंट OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट और OY2 लेवल ऑफ नेशनल इनकम के कम्बिनेशन को शो कर रहा है, जबकि OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट OI2 के बराबर है, जबकि लेवल ऑफ नेशनल इनकम OY2 पर सेविंग्स OS2 के बराबर है। और थर्ड पैनल में L पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी शो हो रही है कि OS2 बराबर है OI2 के। Thus by joining the point U and V, we get the IS curve which shows the relationship between rate of interest and level of national income. As we told earlier that IS curve represents the equilibrium in goods market. Accordingly, there operate a mechanism through the changes in the rate of interest which brings equality between saving and investment. For example, we take a point of the IS curve like point Z, where rate of interest is lower. इन सच सिचुएशन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट वुड एक्सीड द सेविंग्स शोन बाय पॉइंट N।
हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज या इंक्रीज लेवल ऑफ नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम चेंज लेकर आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट के ज़रिए से। जब इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाती है सेविंग से तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा लेवल ऑफ नेशनल इनकम में मल्टीपल चेंज लेकर आता है, मल्टीपल टाइम इंक्रीज लेकर आता है। जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है तो सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि सेविंग्स जो हैं वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम का फंक्शन है। एज शोन बाय एच इन द फर्स्ट पैनल ऑफ द डायग्राम, अल्टीमेटली द इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट takes place at point V. Hence, lower rate of interest result in increased investment, increased income and increased savings. अब हम यहाँ पर ऑफ द आई एस कर्व एक और पॉइंट लेते हैं जो कि अबव आई एस कर्व लाइक कर रहा है, जैसा कि पॉइंट के इस फोर्थ पैनल ऑफ द फिगर में ये के पॉइंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR2 है, लेकिन लेवल ऑफ नेशनल इनकम इस पर बढ़कर OY2 हो जाता है। तो जब लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ती है तो इसकी वजह से सेविंग्स बढ़ जाती हैं, और हम अगर फर्स्ट पैनल ऑफ द फिगर में देखें तो यहाँ पर सेविंग्स जो है OS2 के बराबर हैं, और ये पॉइंट H जो है वो सेविंग्स कैजुअल के ऊपर शो हो रहा है। In this situation, savings would become greater than investment as shown by point L in 3. लेकिन सेविंग इंक्रीज़ होने की वजह से अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट बढ़कर OI1 से OI2 हो जाएंगी। Through all this process, we reach the point V on the IS curve and on point L in the third panel where S2 becomes equal to I2. All this shows that market forces operates in such a way that they bring equilibrium in goods market. Up till now we have discussed the concept of goods market equilibrium. Now we will move further and explain the concept of general equilibrium in money market. यहाँ पर मनी मार्केट में जनरल इक्विलिब्रियम को शो करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम वहाँ पर आता है जहाँ पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल हो जाती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जब मनी डिमांड बराबर हो जाती है मनी सप्लाई के तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होती है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि क्लासिकल मॉडल में मनी जो है वो न्यूट्रल है, मनी इज़ जस्ट होल्ड टू कैरी आउट द डे टू डे ट्रांजैक्शन, यानी लोग जो हैं वो पैसों को सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखते हैं, इसलिए यहाँ पर मनी का रोल जो है वो न्यूट्रल है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी यहाँ पर ज़ीरो है। तो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी चूँकि लेवल ऑफ इनकम का फंक्शन है इसलिए, और मनी सप्लाई कांस्टेंट है, जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होते हैं तो लेवल ऑफ इनकम की डिटर्मिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट केन्स के मुताबिक मनी डिमांड और मनी सप्लाई जब बराबर होती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केन्स मनी डिमांड जो है वो कंपोनेंट है किस किस का, कॉम्बिनेशन है ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी का और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का, जहाँ पर ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी लेवल ऑफ इनकम का फंक्शन है, जबकि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। मनी सप्लाई यहाँ पर भी कांस्टेंट है, जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन होती है केन्जियन फ्रेमवर्क में। कीपिंग इन व्यू दीज कंसेप्ट, Hicks in 1937 in his article give the concept of LM curve. He is of the view that a point where money demand becomes equal to money supply, here not only the rate of interest is determined but there is also a particular level of national income. यानी हिक्स ने एलएम का कंसेप्ट पेश किया और इसने कहा कि एलएम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ नेशनल इनकम के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, जहां पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल हो जाती हैं। तो अब हम एलएम कर्व को डिफाइन करेंगे। एलएम कर्व कुड बी डिफाइंड एज
It is the curve which shows different combinations of rate of interest and income that brings the equilibrium in money market. यानी LM कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होती है। यानी इस कर्व पर सारे के सारे पॉइंट्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, मनी डिमांड मनी सप्लाई की इक्वालिटी को शो करते हैं, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये जो है वो कर्व LM कर्व कहलाता है। नाउ वी विल डिराइव द LM कर्व मैथमेटिकली। LM कर्व को मैथमेटिकली डेराइव करने के लिए MD जो है वो यानी मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होना चाहिए। इस इक्वालिटी के थ्रू हम जो है वो LM इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। MD जो है वो मनी डिमांड को शो करता है, जो कि कॉम्बिनेशन है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का। MSD यहाँ पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है। MTD यहाँ पर ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है। MTD इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MTD इज़ इक्वल्स टू KY, जहाँ पर K जो है वो इनकम का वो प्रोपोर्शन है जो लोग अपनी ट्रांजैक्शनल जो है वो अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अपने पास रखते हैं। इनकम का वो प्रोपोर्शन जो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अपने पास रखते हैं, वो K से शो हो रहा है यहाँ पर। MSD जो है वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MSD इज़ इक्वल्स टू M0 माइनस MR, जहाँ पर ये स्मॉल M0 जो है वो एटोनमस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि माइनस MR जो है ये इंड्यूस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ वेरी कर सकता है। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका जो M0 है उसको एक्सक्लूड करके इसकी जो है वो इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं। तो हम MSD यानी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को सिंपली जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं माइनस MR। अब हम क्या करेंगे, मनी डिमांड की इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों फंक्शन को पुट करेंगे, ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी के और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के फंक्शन को पुट करेंगे, तो हमारे पास मनी डिमांड की इक्वेशन आ जाएगी KY माइनस MR। अब जैसा कि यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट मनी सप्लाई को हम M0 से शो कर लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को जो है MS इज़ इक्वल्स टू M0 जो है वो ये कांस्टेंट मनी सप्लाई को शो कर रही है। अब हमारे पास जो मनी मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम वहाँ पर आता है जहाँ पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर हो जाती है। तो मनी सप्लाई हमारे पास कांस्टेंट है M0 के बराबर है, तो मनी सप्लाई के अगेंस्ट M0 पुट कर देते हैं और MD यानी मनी डिमांड के अगेंस्ट उसका हम कंप्लीट फंक्शन पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी M0 इज़ इक्वल्स टू माइनस MR प्लस KY। अब इस फंक्शन को y के लिए सॉल्व करने के लिए हम इस MR को जो है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे की तरफ मूव कर देते हैं। तो हमारे पास नई इक्वेशन ऐसे आ जाएगी KY इज़ इक्वल्स टू M0 प्लस MR। अब यहाँ पर ये जो K है, ये जो प्रोपोर्शन है जो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने पास रखते हैं इनकम का, इसको बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इनकम जो है उसके लिए सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू M0 डिवाइडिंग बाय K प्लस स्मॉल m डिवाइडिंग बाय KR। तो ये जो इक्वेशन है ये LM इक्वेशन को शो कर रही है, जहाँ पर M0 ओवर K जो है वो आपके पास इंटरसेप्ट है LM कर्व का, जो कि शिफ्टिंग फैक्टर्स हैं LM कर्व के, यानी मनी सप्लाई में चेंज जो है वो LM कर्व को शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट जो है प्लस साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी LM कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व होगा। नेक्स्ट यहाँ पर M ओवर K जो है
आर ये स्लोप ऑफ द LM फंक्शन को, ये LM कर्व को शो कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल m जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज से कितनी है। तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी को शो कर रहा है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की। तो m जो है वो इसकी जो पिकेटनेस और फ्लैटनेस जो है वो उसको डिटर्मिन करेगा। इसके अलावा ये जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है जो लोग अपने पास जो है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए रखते हैं, ये भी जो है वो स्लोप ऑफ LM फंक्शन को अफेक्ट करेगा कि वो स्टीपर होगा, फ्लैटर होगा, किस तरह का कर्व होगा। अब हम जो है मैथमेटिकली जो है वो LM कर्व की इक्वेशन डेराइव करने के बाद अब इसे न्यूमेरिकली डेराइव करेंगे। न्यूमेरिकली डेराइव करने के लिए हमारे पास मनी डिमांड जैसा कि कम्बिनेशन है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी का। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी जो है वो 0.25y के बराबर है और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारे पास 124 माइनस 200 R के बराबर है। तो इन दोनों फंक्शन को हम मनी डिमांड की इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास मनी डिमांड की इक्वेशन आ जाएगी। मनी डिमांड इज इक्वल्स टू KY प्लस M0 माइनस MR। ये हमारे पास मनी डिमांड की इक्वेशन थी। तो इसमें हम दोनों ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के फंक्शंस को पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.25y प्लस 124 माइनस 200 R। कांस्टेंट मनी सप्लाई की वैल्यू हमारे पास 300 गिवन है। तो अब हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की जो इक्वालिटी इक्वेशन है उसके अंदर मनी सप्लाई और मनी डिमांड के फंक्शंस को पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 300 इज इक्वल्स टू 0.25y प्लस 124 माइनस 200 R। अब इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.25y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 124 प्लस 200 R। अब y के लिए सॉल्व करने के लिए 0.25 को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 176 ओवर 0.25 प्लस 200 डिवाइडिंग बाय 0.25 R। ये जो है हमारे पास न्यूमेरिकल इक्वेशन आ गई है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 704 प्लस 800 R। ये LM की न्यूमेरिकल इक्वेशन को शो कर है। अब अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफरेंट वैल्यूज़ दें तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इसे 5% भी वैल्यू दे सकते हैं, 10% भी दे सकते हैं। तो हम डिफरेंट वैल्यू देकर मनी डिमांड और मनी सप्लाई की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं और लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू भी डेराइव कर सकते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली जो है इसकी एक्सप्लेन करने के बाद LM कर्व को अब इसे डायग्रामेटिकली डेराइव करेंगे। यहाँ पर LM कर्व की डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट पैनल्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पैनल है वो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी को जो है वो शो कर रहा है, दैट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। यानी पॉजिटिवली स्लोप कर्व ये शो कर रहा है कि ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी लेवल ऑफ इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंक्रीज़ करेगी। जबकि पैनल 2 जो है वो इसमें स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के कर्व को शो कर रहा है जिसकी जो स्लोप है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्रीजिंग फंक्शन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। पैनल 3 जो है इस डायग्राम में जो कर्व हमारे पास ZZ है वो आप फिक्स सप्लाई को शो करता है, फिक्स सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर MTD एंड MSD। यानी ये जो कर्व है वो फिक्स मनी सप्लाई, ये जो येलो लाइन है वो फिक्स्ड मनी सप्लाई को शो करती है और ये बताती है कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई का ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। जबकि पैनल 4 में हमने LM कर्व डेराइव किया है।
LM कर्व पर पॉइंट U जो है वो OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट और OY1 लेवल ऑफ इनकम के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी MSD2 के बराबर है, जबकि OY1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी MTD1 के बराबर है और MTD1 और MSD2 का कॉम्बिनेशन फिक्स्ड मनी सप्लाई के बराबर है, जो कि पॉइंट N पर शो हो रहा है थर्ड पैनल में। जबकि LM कर्व पर पॉइंट V जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट OR2 और लेवल ऑफ इनकम OY2 के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। OR2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी MSD1 के बराबर है, जो कि सेकंड पैनल में पॉइंट A पर शो हो रही है, जबकि OY2 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी MTD2 के बराबर है, जो कि पॉइंट G पर शो हो रहा है। यहाँ पर MTD2 का सम और MSD1 का सम जो है फिक्स मनी सप्लाई के बराबर है, जो कि पैनल 3 में पॉइंट J पर शो हो रहा है। Thus, by joining the points U and V, we get the LM curve which slopes upward. All the points of LM curve shows that money market is in equilibrium, where money demand is equals to money supply. The points of the LM curve represents the disequilibrium. Like point K, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है और लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाती है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 ही है और लेवल ऑफ इनकम बढ़कर OY2 हो गया है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि जब इनकम बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो इनकम बढ़ने की वजह से ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इनकम का फंक्शन है। जैसे कि पॉइंट G पर हम देख सकते हैं कि OY2 लेवल ऑफ इनकम पर ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी MTD2 के बराबर है। और इसी तरह से अगर हम सेकंड पैनल में OR1 पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी देखें तो वो MSD2 के बराबर है। तो इसका मतलब है MSD2 प्लस MTD2 जो है वो फिक्स्ड मनी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसका मतलब है ये पॉइंट K जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर डिमांड फॉर मनी इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी। जब डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है सप्लाई ऑफ मनी से, तो रिजल्टेंटली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फॉल करेगी, क्योंकि ये नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होकर MSD1 हो जाएगी। तो अब जो है इस MSD1 कम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को अगर हम ऐड करें MTD2 ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी के, तो ये दोनों मिलकर जो है वो इक्वल हो जाती हैं कांस्टेंट मनी सप्लाई के या फिक्स मनी सप्लाई के, जैसे कि पॉइंट J पर शो हो रहा है। और LM कर्व के पॉइंट V पर इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। अब हम अगर LM कर्व के अबव जो है वो एक ऑफ द LM कर्व पॉइंट ले लें, जैसा कि पॉइंट T है, तो इस T पॉइंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है उसी सेम लेवल ऑफ इनकम पर OY1 पर, जैसे कि U पॉइंट जो है वो शो कर रहा है। अगर हम U से T पॉइंट की तरफ जाएं तो यहाँ पर इनकम सेम रही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से बढ़ गया है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से पैनल 2 में हम देखें कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होकर MSD1 हो गई है, जबकि OY1 लेवल ऑफ इनकम पर ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी MTD1 के बराबर है। तो MTD1 प्लस MSD1 मिलकर जमा होकर सम होकर कांस्टेंट मनी सप्लाई से कम रह जाती हैं। तो ये पॉइंट ये T शो कर रहा है कि इस T पॉइंट पर डिमांड फॉर मनी फॉल शॉर्ट ऑफ मनी सप्लाई।
जब मनी सप्लाई एक्सीड कर जाएगी मनी डिमांड से, तो इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज़ होने की वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी और नेशनल इनकम बढ़कर OY2 हो जाएगी। जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इसकी वजह से ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, जैसे कि पॉइंट G पर फर्स्ट पैनल ऑफ द डायग्राम में शो हो रहा है, और LM कर्व पर इक्विलिब्रियम V पॉइंट पर रिस्टोर हो जाएगा। अब IS और LM कर्व की डेरिवेशन के बाद अब हम इन दोनों कर्व को डेराइव करेंगे और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो है डेराइव करेंगे गुड्स और मनी मार्केट में। So here it is reminded that IS curve is a curve that represents the general equilibrium in goods market or production sector of the economy, while LM curve represents the general equilibrium in money market or monetary sector of the economy. And according to Hicks, the simultaneous equilibrium in goods and money market takes place where IS curve intersect the LM curve. It is shown with the help of figure as. यहाँ पर ये नेगेटिवली स्लोप येलो लाइन IS कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रही है, जबकि पॉजिटिवली स्लोप्ड ब्लू लाइन जो है वो LM कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, जो शो कर रही है कि लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पॉइंट E पर IS कर्व LM कर्व को इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट E जो है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है इन गुड्स एज वेल एज इन मनी मार्केट। तो यहाँ पर एक कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट OR स्टेरिक के बराबर है और लेवल ऑफ इनकम Y स्टेरिक के बराबर है। Now, before explaining the dynamics of equilibrium in goods and money market, we present certain propositions regarding goods and money market or asset market. जब कभी भी इकोनॉमी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स को एक्सपीरियंस करती है तो रिजल्टेंटली आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब इकोनॉमी एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स को एक्सपीरियंस करती है तो लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता है। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ता है जब एक्सेस डिमांड फॉर मनी जो है इकोनॉमी में मौजूद होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है। Now we will present how adjustment takes place in the economy in the IS-LM framework. यहाँ पर पॉजिटिवली स्लोप ब्लू लाइन LM कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड लाइन जो है वो IS कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। IS LM जो है वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पर, तो IS और LM की इंटरसेक्शन इस पूरी डायग्राम को 4 डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड कर देती है। अब ये जो आपके पास जैसे कि पैनल 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन है। इकोनॉमी की सिचुएशन या डिस्टर्बेंसेस या डिसइक्विलिब्रियम को देखने के लिए इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि LM कर्व का जो अपर पार्ट है वो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी को शो करता है, तो इसलिए पैनल 1 और पैनल 2 जो है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि लोअर पार्ट ऑफ द LM कर्व जो है वो एक्सेस डिमांड फॉर मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए पैनल 3 और पैनल 4 जो है इस डायग्राम के जो पार्ट हैं वो एक्सेस डिमांड फॉर मनी को शो कर रहे हैं, जबकि LM कर्व पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मनी डिमांड और मनी सप्लाई की इक्वालिटी को शो कर रहे हैं। इसी तरह से इस रेड लाइन IS कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को शो कर रहे हैं। यहाँ पर डिमांड फॉर गुड्स जो है इस लाइन पर सप्लाई ऑफ गुड्स के बराबर है, लेकिन ऑफ द IS कर्व अगर हम इसका अपर पार्ट देखें तो अपर पार्ट जो है IS कर्व का वो ये शो करता है कि यहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैनल 1 और पैनल 4 एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि IS कर्व का लोअर पार्ट एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ पैनल 2 और पैनल 3 एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
Now we see here how the adjustment takes place. We suppose that economy is basically at point E, where there is goods market equilibrium while money supply is greater than money demand. यानी यहाँ पॉइंट ए जो है चूँकि वो आई एस कर्व पर है, रेड लाइन पर है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक्सेस मनी सप्लाई शो हो रही है। क्योंकि ये अपर पार्ट है एल एम कर्व का, तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी शो हो रही है। इसका मतलब है ए पॉइंट पर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी जब भी होती है इकोनॉमी के अंदर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो इकोनॉमी ए पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी। तो ये जो बी पॉइंट है वो इस ब्लू लाइन पर है, एल एम कर्व की लाइन पर है, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन गुड्स मार्केट यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया उसका इक्विलिब्रियम। और गुड्स मार्केट में किस तरह का डिस्टर्बेंस है कि इस बी पॉइंट पर एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स है गुड्स मार्केट में। जब भी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स होती है तो इसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इकोनॉमी जो है वो बी से पॉइंट सी की तरफ मूव करेगी। सी पॉइंट अगेन आई एस कर्व पर है, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एल एम कर्व का ये लोअर पार्ट है, तो ये शो कर रहा है कि पॉइंट सी पर एक्सेस डिमांड फॉर मनी है। जब भी एक्सेस डिमांड फॉर मनी होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ मूव करेगी। डी पॉइंट पर अगेन मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स की सिचुएशन है। फाइनली फॉलोइंग सच एडजस्टमेंट इकोनॉमी विल रीच पॉइंट ई वेयर आई एस कर्व इंटरसेक्ट एल एम कर्व. Hence, OR steric is the equilibrium rate of interest and OY steric is the equilibrium level of income. We can also explain this adjustment process with the help of a table. यहाँ पर उन्हीं 4 पैनल्स को हमने जो है 4 जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स के ज़रिए से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैनल में हमारे पास सिचुएशन है, गुड्स मार्केट में हमारे पास है एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी सेविंग आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। और मनी मार्केट में हमारे पास सिचुएशन है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, यानी मनी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन मनी डिमांड। तो एडजस्टमेंट प्रोसेस के लिए लेवल ऑफ इनकम कम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, यानी लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की मूवमेंट डाउनवर्ड होंगी। सेकंड पैनल में हमारे पास जो गुड्स मार्केट में सिचुएशन है कि वहाँ पर एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स है, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। तो इसका मतलब है यहाँ से लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा एडजस्टमेंट को लाने के लिए इकोनॉमी में। और एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है कि मनी सप्लाई ज़्यादा है मनी डिमांड से, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। थर्ड पैनल में हमारे पास गुड्स मार्केट में सिचुएशन है कि एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स को शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। तो एडजस्टमेंट प्रोसेस के लिए क्या होगा कि लेवल ऑफ इनकम यहाँ पर बढ़ेगी और एक्सेस डिमांड फॉर मनी है मनी मार्केट में, जो ये शो करिए कि मनी डिमांड ज़्यादा है मनी सप्लाई से, तो इसमें एडजस्टमेंट लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। फोर्थ ब्लॉक यहाँ पे शो कर रहा है कि गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, जो ये शो कर रहा है कि सेविंग यहाँ पर ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट प्रोसेस जो है वो आएगा कि आउटपुट यहाँ पर कम हो जाएगी। और मनी मार्केट में यहाँ पर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड फॉर मनी, जो शो कर रहा है कि मनी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है मनी सप्लाई से, तो एडजस्टमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट और मनी मार्केट कैसे आता है, आईएस की डेरिवेशन मैथमेटिकली, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली कैसे होती है, एलएम कर्व क्या होता है, एलएम कर्व की न्यूमेरिकली, ग्राफिकली और मैथमेटिकली डेरिवेशन कैसे होती है, फिर आईएस और एलएम कर्व को ज्वाइन करके साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो है गुड्स और मनी मार्केट में कैसे आता है, और डिसइक्विलिब्रियम की वजह से एडजस्टमेंट प्रोसेस किस तरह से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।